बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक अहम टॉपिक और तकरीबन निगलेक्टेड टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करना चाहते हैं। इलाज हर एक का हक है, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, औरत हो, मर्द हो, या किसी भी जेंडर से ताल्लुक़ रखता हो। हमें क्या करना है एज ए डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट्स को हमें क्या मैसेज देना है कि हमारे अंदर एक ऐसी सनक पाई जाती है जिसे ना हम मर्द कह सकते हैं और ना जिसे हम औरत कह सकते हैं। उनको ट्रांसजेंडर कहा जाता है। इसलिए आज मैं आपको उनके हकूक़ और जो बदकिस्मती से जो बिल पास हुआ है उसमें भी उस तरह के माहिरीन को शामिल नहीं किया गया जो इनको ट्रांसजेंडर की डेफिनेशंस को बता सकें और उनके इलाज की तरफ तवज्जो दे सकें। हमारे यहाँ एक बड़ा अजीब सा कंसेप्ट था बचपन में कि औरत इंसान जो है या मर्द पैदा होता है या औरत पैदा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप सबको मुजफ्फराबाद, आज़ाद जम्मू कश्मीर से खुश आमदीद कहता हूँ और अपने तलबा और तलबा के लिए ये लेक्चर और अपने दोस्तों के लिए जो क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हैं उनके ऊपर अपने इन एथिक्स के बारे में बताना चाहूँगा। ये मेरा वो गोल्डन जुबली का एक ग्रुप है दोस्तों का। इसके बाद ये पिछले दिनों एलिमन आई हुई 52nd, तो उसके ऊपर एक दोस्तों का ग्रुप था, ये लिया गया जिसमें पुराने दोस्त शामिल हैं इसके अंदर। तो आज का जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर, टू establish द एथिक्स ऑफ clinical practice in cross genders, to understand the issues and establish the treatment of these peoples। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जेंडर और सेक्स में क्या फ़र्क है, इनके लिए क्या एथिक्स हैं, इनको किस किस्म की सहूलियात दी जा सकती है और इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। जै जो ये जेंडर है एक खूबसूरत बीम ऑफ लाइट है। कौसो कज़ा के मुख्तलिफ रंग से मिल के ये दुनिया बनी है और इस तरह में हर रंग की रोशनी की एक अपनी अहमियत है। इस तरह हर तरह के इंसान की वजूद की एक खूबसूरती का बायस बनती है। To a lot of people, gender might seem very simple. You're either born with XX chromosomes and therefore you're a girl, or you're born with XY and you're a boy. But it's not quite that simple. Even just from a biological perspective, there are a variety of reasons why you could have XX chromosomes and actually mainly be a male when it comes to your psychology, physiology, and even anatomy. And the reverse is also true. So, if you can be XY and predominantly female, what does that mean? I guess gender just isn't as simple as you thought. The chromosomes and genitalia you're born with make up your biological sex. But sex and gender aren't the same thing. Gender's made up of two other areas, your gender identity and your gender expression. Your biological sex is based on a number of physical factors, including chromosomes, hormones, and genitals. Most people fall at one end of the spectrum or the other. Most people are either entirely male or entirely female. But for a variety of reasons, about 1 in 100 people are somewhere between male and female. People can be biologically somewhere between because of the SRY gene. Every embryo has a pair of protogonads, which are neither male nor female. The SRY gene is part of the male Y chromosome. So the SRY gene turns protogonads into testes, which then produce testosterone and create the rest of the male genitalia. If the male Y chromosome isn't present, then neither is the SRY gene. If the SRY gene isn't present, then the protogonads develop naturally uninterrupted. If the protogonads are given time, they naturally develop into ovaries, and then the rest of the female genitalia develops. That's how the SRY gene works, in theory at least.
Sometimes the SRY gene can be missing or dysfunctional. An embryo with an XY chromosome should always have a functioning SRY gene. However, when it's missing or dysfunctional, the male genitals aren't formed. This would mean that time would pass and ovaries would be produced instead. The baby would be born with female genitalia despite having male XY chromosomes. The reverse can also happen, where an embryo with XX chromosomes can also have the SRY gene. This results in a baby with XX chromosomes being born with male genitalia. There's also a huge number of other ways that people can be born with a less clear biological sex unrelated to the SRY gene. So as you can see, biological sex isn't clearly defined. It's a spectrum and it's not always clear at birth if a child is male or female, because your chromosomes might not match your genitals. The next part of gender we'll discuss is gender identity. Your gender identity is the gender you identify yourself as. Normally around the age of 3, a child develops a firmly held feeling of being male, female, somewhere in between, fluid, or neither gender. Your gender identity is purely based on if you identify yourself as male, female, or another gender. This is where transgender people come in. Transgender people are individuals who don't identify with the sex they were born as. For example, people who are born with a male biological sex but who identify as female, or vice versa. Cisgender people are those who identify with the sex they were born as. There's still a lot of research being done into the biology of being transgender, as we don't know everything quite yet. One theory is based on the fact that sexual differentiation of the genitals and brain happen at different points during pregnancy. 6 to 8 weeks into pregnancy, the genderless protogonads start to become male or female genitals, whereas gender-based difference in the brain happens in the second half of pregnancy. A wide variety of environmental factors such as hormones, chemicals, and nutrients determine if the brain and genitals become male or female. This means that the environment around an embryo could change between the genitals being developed and the brain, which could cause a disconnect between the two. There aren't specific male and female brains, but there are differences between the brains of men and women. Research into transgender people shows that trans people's brains tend to be more similar to the gender they identify as than their biological sex at birth. This research is only in its early stages, but it helps us to begin to understand what could cause people to be transgender. Your gender expression is a third completely separate part. Your gender expression is based on how you convey your gender to other people. This could be through behavior, clothing, or any other external signs of gender. This is also a spectrum. On one end is masculine, where you express your gender in a way which very closely aligns with things your culture thinks of as male. While on the other end is feminine, so expressing your gender in a way associated with females. There's a whole variety of gender expressions between these two extremes. It's important to remember that having a gender expression which doesn't 100% match your biological sex doesn't make you transgender. Few people completely comply with all of the cultural stereotypes which define what it means to be male or female. When it comes to me personally, my biological sex is male, my gender identity is male. However, I wouldn't put my gender expression as 100% male. My traits are generally male, but I don't completely match society's stereotypes of what it means to be male. Your gender expression is a very subjective thing, and there's a lot of space between the two extremes. Somewhere between the two sides is identifying as androgynous. This means being a combination of masculine and feminine, or another form of gender expression. As we go forward, there's going to be more and more conversations about what it means to be male. जी आज वीडियो दिखाने का मकसद ये था कि जिसमें आपको मालूम हो सके सेक्स जो होती है डिपेंड्स हमारे बायोलॉजिकल करैक्टर्स के ऊपर होते हैं जो हमारे एक्स 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 वाई और एक्सप्रेशन आपका जब बच्चा पैदा होता है तो उससे माँ बाप को मालूम होता है कि ये या बच्चा मेल है या फीमेल है और उसके बाद आगे जब उसके ऊपर हार्मोन का इफेक्ट एनवायरमेंटल का इफेक्ट या उसका जेनेटिक इफेक्ट होता है उससे उसकी सेक्स की बायोलॉजिकल इफेक्ट्स अपीयर होते हैं लेकिन जो जेंडर है वो उसका बिहेवियर है माहौल उसकी सोच उस तरह किस तरह मेजॉरिटी तौर पे हमें जो जेंडर की डिटर्मिनेशन होती है वो उसके बायोलॉजिकल सेक्स करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर नहीं होती वो उसका बिहेवियर है मैं आपको उसके चंद अकसाम बताता हूँ लेस्बियन होती हैं फीमेल जो हैं नेचुरली एक दूसरे के साथ मेल और फीमेल कनेक्ट होती हैं बिहेवियर उनका बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स से हट के एक दूसरे के साथ लेकिन बाज़ ख़वातीन ऐसी होती हैं जो सिर्फ ख़वातीन से ही अटैच होती हैं उन मर्दों से उनकी अटैचमेंट नहीं होती अपोजिट सेक्स नहीं होती इस तरह केस होता है
वो मेल टू मेल एक दूसरे से अटैच होते हैं। ये इसका भी सेक्स करेक्टरिस्टिक्स के हट के उसके ऊपर होता है। बाइसेक्सुअल्स होते हैं कुछ लोग। ये सब, ये सारे एक महवर के अंदर, एक जिस माहौल के अंदर उनकी तरबियत, ट्रांसजेंडर होते हैं। बुनियादी तौर पे ना तो वो मेल होते हैं ना ही वो फीमेल होते हैं। दैट इज जिसके अंदर हम ख्वाजा सराज इनको कहते हैं। आज का ज़्यादातर करेक्टरिस्टिक्स होते हैं हमें ख्वाजा सराज जो मुख्तलिफ माहौल का शिकार होते हैं। हमने अपने इन लोगों के ऊपर, जैसे एक कोरोना आया था और हमने एक अपने लॉकडाउन कर दिया था, इनके ऊपर भी हमने लॉकडाउन कर दिया। ख़ास तौर पे इनको जब इलाज कराने के लिए जाते हैं तो इनको किन किन मसाइल का शिकार होता है। इस तरह क्वीर्स हैं और इस तरह इंटरसेक्स होते हैं। ये जेंडर का मैंने वीडियो दिखाई आपको, जिसके ऊपर सेक्स और बायोलॉजी के ऊपर हमारे क्रोमोसोम्स, हार्मोन्स, गोनेड, जेनेटल्स इफेक्ट होते हैं। जबकि जो सेक्सुअल अट्रैक्शन होती है, रोमांटिक अट्रैक्शन होती है, ये आपके जेंडर को डिटरमिन करता है और जेंडर एक्सप्रेशन के साथ उसका खास रोल हो जाता है। अस्सलाम ये एक वालेकुम। और वीडियो माजी देखें से आप। ये सोच चली आ रही है कि फिजिकल अपीयरेंस की बेस पर इंसानों में 3 मुख्तलिफ जेंडर्स पाए जाते हैं, जिनमें मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर शामिल हैं। ऐसा सोचा जाता है कि अगर पैदाइश के वक्त बच्चों की फिजिकल अपीयरेंस मेल जैसी हो तो उन्हें बॉय कहते हैं, और अगर बच्चों की फिजिकल अपीयरेंस फीमेल्स जैसी हो तो उन्हें गर्ल्स कहते गर्ल्स हैं। कहते हैं। इसी तरह अगर किसी बच्चे की फिजिकल अपीयरेंस ऐसी ना हो औरत कि वो हो ना ना मेल मर्द लगता हो, हो उसको और हम ना ख्वाजा फीमेल, सराय तो कहते उसे ट्रांसजेंडर समझा जाता है। जबकि ट्रांसजेंडर्स के बारे में ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि इंसानों में जेंडर्स का ताल्लुक उनकी फिजिकल अपीयरेंस से कहीं ज्यादा उनकी फीलिंग्स और फीलिंग्स एक्सप्रेशंस के के साथ होता है। माहौल के यही वजह है कि बॉयज में मेल जैसी फीलिंग्स पैदा होती हैं और और गर्ल्स में फीमेल जैसी फीमेल फीलिंग्स पैदा होती हैं। जबकि ट्रांसजेंडर्स का ताल्लुक जीन से नहीं होता और ना ही उनकी फिजिकल अपीयरेंस मेल या फीमेल से मुख्तलिफ होती है। अलबत्ता उनकी फीलिंग्स और एक्सप्रेशंस उनकी फिजिकल अपीयरेंस से मैच नहीं करते हैं, जिस वजह से ट्रांसजेंडर्स को मेल्स और फीमेल्स से डिफरेंट समझा जाता है। लेकिन बाजुकात पैदाइश के वक्त कुछ बच्चों में मेल और फीमेल दोनों के जेनिटल ये ऑर्गन्स सिर्फ पाए जाते हैं। 5% ऐसे ऐसे बच्चों को इंटरसेक्स कहा जाता है और इस पर बनाई गई वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। ट्रांसजेंडर्स क्यों बनते हैं? एक बॉय और गर्ल में मुख्तलिफ हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जो उनमें मेल और फीमेल कैरेक्टर्स पैदा उन करते हैं। हार्मोन्स लेकिन अगर किसी अननोन रीजन से गर्ल्स में मेल्स जैसे हार्मोन्स प्रोड्यूस होने लग जाए या बॉयज में फीमेल जैसे हार्मोन्स, तो इससे उनकी फीलिंग्स और एक्सप्रेशंस डिफरेंट हो जाते हैं, जो उन्हें ट्रांसमैन या ट्रांस वुमेन बना देती हैं। इसके अलावा कुछ लोगों के सेक्स क्रोमोसोम्स में एबनॉर्मेलिटीज की वजह से ट्रांसजेंडर जैसी खसूसियात पैदा होने लगती हैं। इस कंडीशन को लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं और ये सिर्फ मर्दों में पाई जाती है। सेक्स क्रोमोसोम्स पैदाइश के वक्त फीटस में मेल या फीमेल करैक्टर प्रोड्यूस करते हैं, जैसा कि एक्स वाई सेक्स क्रोमोसोम्स मेल बनाते हैं और एक्स एक्स सेक्स क्रोमोसोम्स फीमेल बनाते हैं। जबकि लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाले लोगों में फीटस डेवलपमेंट के दौरान एक्स वाई सेक्स क्रोमोसोम में एक एक्स की जगह दो एक्स ऐड हो जाते हैं और एक्स एक्स वाई सेक्स क्रोमोसोम्स बना देती है, जिससे मेल्स में फीमेल्स जैसी खसूसियात पैदा होने लग जाती है, जैसा कि कम उम्र में कद का ज्यादा बढ़ जाना, ब्रेस्ट्स की इनलार्जमेंट हो जाना और शाइनेस यानी कि शर्मीला हो जाना वगैरह शामिल है। जेंडर अफर्मिंग सर्जरीज, दोनों तरह के ये हार्मोन ऐसी सर्जरीज होती हैं जिनके थ्रू फीमेल टू मेल और मेल टू फीमेल कैरेक्टर्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात ये बात ऐसा होता है कि ऐसा इनका इनके लिए इन लोगों के लिए जो है वो ऑपरेशन कराते हैं, लेकिन उसके लिए भी जो एथिक्स है, उसके जो माँ बाप हैं उनसे उनकी राय ली जाती है कि क्या इसको बच्चे को हमने मेल बनाना है या फीमेल बनाना है। आजकल जो ये मुख्तलिफ तब्दीलियां आ रही हैं ये एथिक्स के बगैर आ रही कुछ ट्रांसजेंडर्स हैं। अपनी बॉडी शेप को लेकर बहुत सेंसिटिव होते हैं और अपनी बॉडी को अपनी फीलिंग्स और एक्सप्रेशंस के मुताबिक तब्दील करना चाहते हैं।
इसलिए ऐसे ट्रांसजेंडर्स जिनके जेनिटल्स मेल्स की तरह होते हैं लेकिन फीलिंग्स फीमेल्स जैसी होती हैं, तो वो मेल टू फीमेल सर्जरी करवाते हैं जिससे वो वुमेन्स औरत की बन तरह जाती नजर आने लगती हैं। जबकि ऐसे ट्रांसजेंडर्स जिनके जेनिटल्स फीमेल्स की तरह होते हैं लेकिन उनकी लेकिन फीलिंग फीलिंग्स मर्दों मेल जैसी जैसी है, होती हैं, वो तो मेल वो सर्जरी। फीमेल टू मेल सर्जरी अच्छा, करवाते हैं इसका भी ताकि एथिक्स है। वो मेल्स की तरह नजर आ उनके सकें। पेरेंट्स उनको सर्जरी के बहुत सा अलावा हार्मोन्स के ज्यादा इनटेक से भी कुछ चेंजेस की जा सकती हैं, जैसा कि ब्रेस्ट्स की इनलार्जमेंट को सर्जरी के स्टॉप बगैर करना, कुछ मेडिसिन मसल्स भी को है, प्रॉपर शेप देना मसल्स को और फेस और चेस्ट पर हेयर्स की ग्रोथ करवाना वगैरह। इसी तरह लाइनफेल्टर सिंड्रोम को ट्रीट नहीं किया जा लेकिन सकता, उसके मसाइल अलबत्ता को इसकी कम किया। अलामात को कम किया जा सकता है, जैसा कि ब्रेस्ट। इसके बाद देखें कि हम उन अभी तक मेरा ख्याल है कि मेरे लेक्चर से और इन दो वीडियोस से आपको ये एहसास हो गया होगा कि सेक्स और जेंडर में क्या फ़र्क है, और जेंडर्स की जो है वो जो इलाज है वो उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक किया जाता है। लेकिन व्हाट आर द डिफरेंट बैरियर्स टू केयर, क्या मसाइल हैं। 28% लोगों के अंदर देखा गया है कि वैन सिक, जब बीमार होते हैं या इंजर होते हैं, उनको डिस्क्रिमिनेशन का शिकार करना पड़ता है। और इसके बाद है कि जो 48% लोग हैं दे आर इनएबल और कैनॉट अफोर्ड टू सी द हॉस्पिटल्स एंड द डॉक्टर्स, यानी द ट्रांस पीपल पोस्टपोन देयर मेडिकल केयर। उसकी वजह ये है डिस्क्रिमिनेशन से बचने के लिए, या उनको मालूम नहीं है, या उसके साथ जो गैर मुंसफाना सलूक किया जाता है उसकी वजह से वो बेचारे। आप देखें ना कि बहुत सारे HIV के लोग जो होते हैं ये ट्रांसजेंडर होते हैं, और लेकिन उनका इलाज नहीं होता बल्कि वो खौफजदा होते हैं। फिर एक बहुत सारा एरिया देखा जाता है 19% कि वो इलाज ही नहीं कराते, और उसके बाद बहुत सारे हमारे डॉक्टर्स को या हमारे जो इन ट्रांसजेंडर से उनको मालूम नहीं होता कि हमने इलाज कराना। 50% लैक ऑफ नॉलेज होता है। एक और बीमारी जो जेंडर्स के अंदर पाई जाती है जिसको डिस्फोरिया कहते हैं, ये खौफ है। इस खौफ को हमने डॉक्टर्स की हैसियत से, ये मेरे मेडिकल स्टूडेंट्स के तलबा और तलबात के लिए ये एक पैगाम है कि हमने उनके खौफ को रोकना है, वरना वो खुदकशी कर लेते हैं या जराइम पेशा रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। इसलिए उनको जराइम पेशे से, जराइम से बचाने के लिए और उनको सुइसाइड से बचाने के लिए उनको एक जो है उसका इलाज जो है बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद एक है ट्रीटिंग डिप्रेशन, बहुत दिमागी, वो वैसे भी इंसानों के अंदर आजकल यंग्स के अंदर 26 से 31% जो है वो मेंटल डिप्रेशन देखी गई है इनके अंदर, तकरीबन 100% किस्म के लोगों के अंदर। इसलिए उनको उनको उनके मिजाज के मुताबिक, उनके माहौल के मुताबिक उनको फिक्स करना है कि आपने किस तरह का आपने माहौल को पैदा करना है। इसके बाद ये है कि दिस कंडीशन काजेज क्लिनिकल सिग्निफिकेंस अगर हमने इलाज उसको ना किया, और इम्पेयरमेंट द सोशल, ऑक्यूपेशनल एंड इम्पॉर्टेंट एरियाज ऑफ द फंक्शनिंग। डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल जो ये इसका जो इनकी तशखीस है, ये खास जेंडर डिस्फोरिया इज मैनिफेस्टेड इन वैरायटी ऑफ द वेज इंक्लूडिंग स्ट्रॉन्ग डिजायर टू बी ट्रीटेड एज एन अदर। हर एक का हक है कि मेरा भी उस तरह का इलाज किया जाए, आर टू बी रेड ऑफ पास, उस माहौल से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसको कोई ऐसा रास्ता नहीं हो सकता कि वो खुद भी उससे अलहदा होना चाहते हैं। A strong conviction that one has feeling and reaction typical to the other gender, ये हर एक का एक हक है। तो ये जो आपका डिस्फोरिया है सेक्सुअल डिस्फंक्शन से हट के एक ऐसी बीमारी है जिसको दूर करना हमारे डॉक्टर्स का इंतहाई फर्ज। ये इलाज है जिसको फेमिनाइजिंग, मस्कुलिनाइजिंग हार्मोन थेरेपी, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्सोजीनियस एंडोक्राइन agents to include the feminizing and masculinizing changes is medically necessary। जैसे आपने वीडियो में देखा कि सर्जरी के अलावा भी इनको मेडिकली तौर पे ट्रीट। सबसे ज़्यादा अहम बात जेंडर्स के अंदर ये होता है कि उनको
उनके माहौल के मुताबिक, मिजाज के मुताबिक उनको इलाज पर मुहैया करना हमारा फर्ज है। देखें, एक ट्रांसजेंडर है, खुद सा बीमार हो जाता है, उसके लिए आपके पास कोई ऐसा कानून ही नहीं है कि मेल वार्ड में जमा कर दाखिल कराएं या फीमेल में दाखिल कराएं। फीमेल में जाएगा तो वो शोर मचाना शुरू करेगी, अगर मेल में जाएगा तो वहाँ एक डिस्टरबेंस होगी। इसलिए हर हॉस्पिटल के अंदर कुछ बेड्स ऐसे मखसूस किए जाएं जिसके अंदर ट्रांसजेंडर्स का इलाज करवाया जा सके। हमारे जो फराइज में आती है कि डॉक्टर्स की हैसियत से हमें चंद चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले है रेस्पेक्ट, कि हमने अपने पेशेंट्स को रेस्पेक्ट देना है। रेस्पेक्ट उसको उसके आधी बीमारी उसकी तवज्जो देने पे खत्म होती है। बेनेफिशंस, उसको किस चीज़ में फ़ायदा है और किस चीज़ में नुकसान है, और उसके खिलाफ जो है उसके टू ट्रीट इक्वालिटी एंड फेयरली, ये है जस्टिस, कि हमने उसके साथ जस्टिस मुहैया करना। फिटैलिटी, एतमाद को कायम रखना है। फेथ है, डॉक्टर्स का पेशा एक फेथ है, इसलिए उसके एतमाद को, अगर एक ट्रांसजेंडर ये रिक्वेस्ट करता है कि मेरी बीमारी आपने किसी को नहीं बताना, मेरी बीमारी की जो टर्मिनल वो है एंड पॉइंट्स हैं वो भी आपने किसी को नहीं बताने। एक बात, नॉन मेलेफिसेंट जो है, ये अवॉइड हार्म टू अवॉइड डिस्क्रिमिनेशन विद ट्रांसजेंडर्स, veracity to equal the equality of being truthful and honest, autonomy, हर एक का हक है कि वो कहाँ से इलाज कराए, किस तरह इलाज कराए, प्लान ऑफ केयर इन कंसल्टेशन विद द ट्रांसजेंडर, अकाउंटेबिलिटी, और फिर इसके बाद अहम जो है एतमाद, कॉन्फिडेंशियलिटी, कीप द पेशेंट इंफॉर्मेशन डाटा प्राइवेट। बात देखें, रिसर्च के नाम पे उनके डाटा को लेना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको कॉन्फिडेंशियल रखनी होती हैं। ये आपको एक रिसर्च बताऊं, इस रिसर्च के अंदर, ये पाकिस्तान में रिसर्च की गई है कि ट्रांसजेंडर के अंदर किन किन मसाइल का शिकार है। Hello, my name is Raisa Saleh. I'm a fourth-year medical ये student मेडिकल स्टूडेंट्स के अंदर रिसर्च की गई, based in Karachi, Pakistan. I गिटाओ am मेडिकल कॉलेज, a medical students और मैं कहूँगा कि noticed हर मेडिकल कॉलेज के अंदर इस तरह का रिसर्च होनी चाहिए। often marginalized by the healthcare systems in the developing world. Their specific health needs are often not catered to, leading to poorer health outcomes. Upon exploring this further, we realize that this may be due to the lack of awareness and education of healthcare providers about their specific health concerns. As medical students are the healthcare professionals of tomorrow, we wanted to evaluate the knowledge and attitudes of medical students regarding the health needs of people who are transgender. We also wanted to assess their perceived need for education on transgender health. We therefore carried out a cross-sectional study titled The Need for a Transgender Healthcare Medical Education in a Developing Country. Our study was conducted amongst undergraduate medical students using a self-designed questionnaire. We stratified students based on their year of medical education and randomly sampled students from within each year. A total of 249 students were surveyed. We found that while most students understood what it means to be transgender, knowledge regarding the specific health needs of people who identify as transgender was lacking, with a significantly higher percentage of preclinical students having poor knowledge as compared to students in their clinical years. Most students felt that in our country, people who identify as transgender face a lack of access to healthcare and that they are poorly integrated into society. In the clinical setting, a large proportion of students felt that patients who are transgender were treated differently and were unsure of how to address and examine them. However, most students demonstrated good or fair attitudes towards individuals who identify as transgender, and the majority reported a high or moderate perceived need for the inclusion of a transgender health component in the undergraduate medical curriculum. From this study, we can conclude that there are deficiencies in the transgender healthcare-related education in the current medical school curriculum. However, positive attitudes and a high perceived need lay the foundation. ये वो पॉजिटिव एटीट्यूड है जो आप अपना के इन ट्रांसजेंडर के मसाइल को कम कर सकते हैं।
ये मुख्तलिफ जो प्लान्स हैं किस तरीके से 2012 का प्लान है, 2006 का प्लान है, 2009 का प्लान है, किस तरीके से हम इनको इलाज कर सकते हैं, इनकी तशखीस करना, इनके साथ अपने एटीट्यूड को बेहतर करना, क्या मुनासिब इनको पूरी इनकी कंसेंट लेना और इसके मिजाज के मुताबिक, और इनको उन पेशों से अलहदा करना जिन पेशों के साथ मसाइल जो हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। ज़िंदगी एक ऐसा रोड है कि जो रोड तो रह जाती है लेकिन इसका एंड जो है वो हमारी हर हर इंसान के लिए एक जैसा है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है। और गेट कीपर वर्सेस इन्फॉर्म इन कंसेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। इनसे इलाज के लिए इन्फॉर्म कंसेंट बहुत ज़रूरी होती है। हर एक का हक है टैटूइंग कराना, मैरिज करना, प्लास्टिक सर्जरी करना, चाइल्ड पेयरिंग, हार्मोन परचेसेस, ये वो एथिक्स हैं। इनको घर चाहिए, इनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, फैमिली सपोर्ट चाहिए, रिलेशनशिप। सबसे पहले तो मैंने उन माँ बाप को, उन बहन भाइयों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा मसाइल उनको घरों से मत निकालें और उनको उनके मिजाज के मुताबिक उनको तालीम दें, उनको पढ़ाएं। और ये तबका अगर हमारा 5% है ट्रांसजेंडर का, अगर इनको तालीम देते हैं, अगर इनको फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं, अगर इनको हम जॉब देते हैं, तो ये सारे मसाइल आपको जो पाकिस्तान के हर चौक में खड़े हुए नज़र आते हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। इन्फॉर्म कर सकते कि हार्मोन, 3 हार्मोन हैं, इनको हर एक का, ये पीसीओएस, ये जो इसको किस तरीके से ट्रीट करना है, हाइपोगोनाडिज्म को किस तरह ट्रीट करना है, पोस्ट मेनोपॉजल वोमन के साथ क्या सलूक, ये सारे मसाइल जो हैं ये मॉनिटर करना बहुत अहम होता है। इनके इलाज करना, इनकी मेडिसिन देना और इसको मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा है। और इसके बाद जो है कैन प्रेफर पर ट्रेनिंग प्राइमरी के, और डॉक्टर्स को भी हमारे जब वो ट्रेनिंग FCPS पार्ट 2 की ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, MDMS की ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, PhD कर रहे होते हैं, तो इस तरह की उनकी भी ट्रेनिंग व्हाट इज द समरी। जेंडर is a spectrum and varies from person to person। जैसे माहौल के मुताबिक ये इसका डिपेंड नहीं करता सेक्स क्रोमोसोम्स के। ट्रांस पेशेंट्स विल ऑफन कम इन विद ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ मिसट्रीटमेंट बाई हेल्थ केयर सिस्टम। हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर इनके ऊपर खसूसी तवज्जो दें, खसूसी वार्ड, खसूसी इनके साथ फाइनेंशियल मेडिसिन सपोर्ट और इनकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए। एटीट्यूड चेंज होना चाहिए नेशनली। एटीट्यूड को ट्रीटिंग जेंडर डिस्फोरिया, वी कैन सेव these transgender from doing suicides, providing a safe space for trans people to themselves is most important। ये मेरा एक पैगाम है। अना जब तक फना के हाथ पर बैयत नहीं करती, नमाज इश्क दिल की जबी महरूम रहती है। मेरे तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो मेडिकल शोबा से ताल्लुक़ रखते हैं, और मेरे तमाम तलबा और तालबात से गुजारिश है कि जब वो इसकी स्पेशल ट्रेनिंग लें और अपने एटीट्यूड को इस तरह पॉजिटिव बनाएं कि हम इस तरह के मरीज़ों का इलाज बेहतर अंदाज में कर सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।